everyone. So today we are going to start with decision theory. Now what actually a decision word means, like if we have much alternatives and we want to decide that हमें कौन सा alternative opt करना चाहिए, that is nothing but decision. So what are the stages involved in decision making theory? First and foremost, we identify with the problem, that what actually our problem is and what could be the alternative courses of action. जस्ट टेकिंग फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कोई भी अपनी आइटम्स को पब्लिसाइज करना है, सो हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं. बी इट इंटरनेट हो सकता है, फाइन न्यूज़पेपर के थ्रू एडवर्टाइजमेंट की जा सकती है. फाइन देयर कुड बी एन नंबर ऑफ वेज जिसके बेसिस पे हम ऑल्टरनेटिव, दीज आर द ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शंस. एंड वील identify expected future events, and what could be the future possibilities of all the events. And then considering this, we'll construct a payoff table. फाइन पे ऑफ टेबल कुड बी लाइक, हम पे ऑफ किसको बोलते हैं, जैसे हम देखेंगे कि हमारी किस कॉम्बिनेशन में कॉस्ट कम हो रही है, या हम कह देंगे हमारी सेविंग ज्यादा हो रही है, सो हम वो वाला ऑप्शन ऑप्ट करें. एंड ऑल्सो बेसिस वील सिलेक्ट द ऑप्टिमम डिसीजन क्राइटेरिया. नाउ लेट अस कंसिडर विद दिस प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम सेज द पे ऑफ द टेबल फॉर द three courses of actions means three alternatives we have with these states of nature, means events with their respective probabilities are given below to find, and we need to find out best course of action. So we need to find out that what could be the best course of action. जो भी हमारे पास events हैं और जो हमारे पास courses हैं, हम उसमें से कौन सा decision opt करें. So we are going to find out this. For finding out this, we are going to calculate expected monetary value. We're going to calculate is expected monetary value, that is EMV. Fine. For calculating expected monetary value, we'll simply do, now we have Act 1. For Act 1, 2.5 is given under the state of nature 1. With that, the probability of expecting is 0.3. We simply multiply for calculating the payoffs, and moving on, say straightway 2 into 0.4, that is we'll multiply this, and plus minus 1 into 0.3 with the respective probabilities हम उसके साथ multiply कर देंगे, and summing up we'll get our expected monetary value, that is 1.25 here. Same way we'll move out for the second option, that is A2, that is 4 into the expected probability corresponding is 0.3 plus 2.6 into 0.4 plus 0 into 0.3, summing up which will come out to be 2.24. Now straightway for the last one, that is A3, 3 into the corresponding probability is 1.8 into 0.4 and 1 into 0.3. So this will come out to be 1.92. अब हमने ये स्टेट, हमने तीनों की एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यूज निकाल ली. ठीक है, हमें क्या दिया हुआ था, हमें ये पे ऑफ दी हुई थी. हमने सिंपली क्या करेंगे, पे ऑफ के साथ एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे एंड विल सम अप एंड फाइंड आउट दी एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यूज, यू कैन से एक्सपेक्टेड वैल्यूज. और अब हम देखा जाए, अगर हम इन तीनों के ऑप्शन से देखें तो सबसे ज्यादा हमें मॉनेटरी वैल्यू किस में आ रही है, दैट इज इन A2, दैट इज एक्शन 2. So this means action 2 is the best. A2 is the best course of action, and the company or the decision should be go on with A2 because A2 has the highest monetary value. So A2 is the best as it has highest EMV. जिसकी भी highest EMV होती है, we'll go with that decision. So for calculating this, for calculating expected monetary value, we go with these steps. Now these are the steps written here. सबसे पहले हम क्या करते हैं, पे ऑफ टेबल जो हमें दिए हुए थे, जैसे इस क्वेश्चन में जो भी डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन और स्टेट ऑफ नेचर को कंसिडर करते हुए जो कॉम्बिनेशंस बनाए जाते हैं उनको बोलते हैं पे ऑफ टेबल्स. पे ऑफ कुड भी कि हमें कितनी कॉस्ट सेव हो रही है, या हम बोल सकते हैं कि कितनी सेविंग्स हो रही हैं, उसके बेसिस पे दीज वर द पे ऑफ्स. ठीक है, इन मैनी क्वेश्चन जो हम आगे ट्राई करेंगे, पे ऑफ्स हम खुद कंस्ट्रक्ट करेंगे. अब इस क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी पे ऑफ्स गिवन थी. ठीक है, हमने वो पे ऑफ्स को लिस्ट किया, पे ऑफ्स को किसके साथ मल्टीप्लाई किया, प्रोबेबिलिटी के साथ. हमने यही स्टेप फॉलो किया एंड देन वी सिंपली एड अप दीज वैल्यूज, और जो एड अप करके हमें मिलेगा हम उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू. ठीक है, ये एक्सपेक्टेड वैल्यूज, और जो ज्यादा होगी, जो सबसे ज्यादा वाली होगी, जिसकी हम वो वाली बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन हम उसको मानेंगे, या बेस्ट स्ट्रेटेजी वुड बी डीम टू दैट. ठीक है, अब हम आगे एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं रिलेटेड टू दैट.
स्टार्ट विद वन प्रॉब्लम एंड लेट अस लर्न कि हम पे ऑफ टेबल्स वैसे वैसे बनाते हैं, बिकॉज अभी हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में किया कि पे ऑफ टेबल्स ऑलरेडी वहाँ पे हमें दिए हुए थे कैलकुलेट करके. अब इस क्वेश्चन में वी लर्न हाउ टू मेक पे ऑफ टेबल. द प्रॉब्लम सेज इफ यू मेक अ टेबल अ यूनिट प्रोडक्ट एंड इट इज सोल्ड यू विल गेन ₹5. हमने प्रोडक्ट बनाया और वो हमें सेल भी हो गया, सो दैट इज गोइंग टू सोल्ड फॉर एंड वी आर गोइंग टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹5. अगर हमने प्रोडक्ट बनाया और वो नहीं सेल हुआ तो हमें लॉस हो जाएगा ₹3 का. कई बार क्या होता है, प्रोडक्ट्स पेरिशेबल है, खराब हो जाते हैं, तो हमें लॉस हो जाएगा ₹3 का. ठीक है. सो सपोज द डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन टू अस. ये हमें प्रोबेबिलिटीज गिवन है, नंबर ऑफ यूनिट्स डिमांडेड गिवन है. ठीक है. हम उसके बेसिस पे विल कंस्ट्रक्ट अ पे ऑफ टेबल. फॉर दिस सबसे पहले हम एक वर्किंग करेंगे. हमने यहाँ पे एस है. ठीक है. एस स्टैंड्स फॉर बेसिकली नंबर ऑफ यूनिट स्टॉक. हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय एम, स्मॉल एम. ठीक है. डिमांड को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल एन से. ठीक है. बेसिकली क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अगर डिमांड ज्यादा है, ठीक है, सप्लाई से, इसका मतलब आपने जितने गुड्स बनाए होंगे वो सारे के सारे बिक जाएंगे, तो आपको प्रॉफिट होगा. प्रॉफिट होगा 5M. एम मतलब जितने गुड्स आपने बनाए हुए हैं उतने सारे के सारे सेल हो जाएंगे. ठीक है. बट अगर आपकी सप्लाई ज्यादा है डिमांड से, सो इसका मतलब जितनी डिमांड होगी उतने तो बिक जाएंगे, बिकॉज हमारे पास सप्लाई अबंडेंस में है, हमने बहुत सारे गुड्स बनाए हुए हैं. तो हमने जितनी की डिमांड है, डिमांड हमने किसी डिनोट की थी एन से, तो 5N, हमें इतना प्रॉफिट तो होगा जितने की डिमांड होगी. बट कुछ गुड्स हैं जिनको हमने बनाए हुए हैं बट वो सेल नहीं हो रहे, बिकॉज हमारी सप्लाई ज्यादा है डिमांड से, दैट इज एस इज ग्रेटर देन डी. उसका हमें लॉस कितना हो जाएगा, -3. मीन्स लॉस इज माइनस हेयर, लॉस सिग्निफाइज सब्ट्रैक्ट साइन 3. ठीक है. -3M - N, बिकॉज S स्टैंड फॉर M, सप्लाई इज हियर डिनोटेड बाय M एंड D इज N. अब इसको SM SD करके भी क्वेश्चन कर सकते हो. ठीक है. जस्ट सॉल्विंग दिस, और यहाँ पे हमारा प्रॉफिट आ रहा है 8N - 3M. ठीक है. अब हमारे पास दो प्रॉफिट्स की कंस्ट्रक्शन हो गई. अगर डिमांड ग्रेटर देन इक्वल टू S है तो प्रॉफिट होगा 5M. अगर सप्लाई ग्रेटर देन डी है, विल कंस्ट्रक्ट पे ऑफ टेबल. फॉर दिस वी हैव मेड टू इक्वेशंस. एक सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, तब हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है 8N - 3M. और अगर डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई है तो 5M विल बी आर प्रॉफिट. सो हमने प्रॉफिट के बेसिस पे पे ऑफ टेबल बनाएंगे. ठीक है. अब अगर सप्लाई 0 है, ठीक है, और डिमांड भी हमारे पास, बट आपने सप्लाई देखो यहाँ पे 0 है. ठीक है. अगर सप्लाई यहाँ पे 1 है, 2 है, बट इन एवरी केस इट विल बी 0 बिकॉज वी आर सप्लाइंग नथिंग. ठीक है. तो उसके बेस पे हमारे पास जो इक्वेशन है वहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, वो एम जो हमारे पास हमने सप्लाई में एम उसको मानना है सप्लाई को, दैट इज 0. सो इन एवरी केस इट विल बी 0. बट इफ सप्लाई इज 1 एंड डिमांड इज 1, अगर सप्लाई 1 है, ठीक है, दिस मीन्स कि हमारे पास हमने इसको कैसे डिनोट किया, इसको हमने एम से डिनोट किया और इसको हमने एन से डिनोट किया. राइट. सो विल पुट अप दिस इक्वेशन. यहाँ पे कौन सी इक्वेशन आएगी, सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड वाली, दैट इज दिस वन. ठीक है. उसके बेसिस पे क्या हो जाएगी 8 इंटू 0 बिकॉज हेयर डिमांड इज 0, -3 इंटू 1 बिकॉज हमारे पास 3 हमारे पास जो 1 यूनिट्स है अनसोल्ड रहेंगे, बिकॉज हमारे पास डिमांड कुछ है नहीं, हमने बनाई कितनी 1, सो सिंपली हमारा लॉस हो जाएगा, दैट इज -3. देन हेयर दे बोथ आर इक्वल. ठीक है. जब दोनों इक्वल होंगे तो हम ये वाली से प्रॉफिट निकालेंगे 5M. M इज हेयर सप्लाई, 5 इंटू 1 दैट इज 5. अब यहाँ पे भी देखो इन एवरी केस 2 3 4 5, हम इस केसेस में देखें तो इस केस में हमारी डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, तो हम इस इक्वेशन के हिसाब से प्रॉफिट निकालेंगे, दैट इज 5M. M इज हेयर सप्लाई, सो सिंपली 5 5 5 इट विल कम एवरीवेयर 5. नेक्स्ट इज 2. नाउ यहाँ पे सप्लाई 2 है, मतलब सप्लाई इज मोर देन डिमांड. अब हमारे पास मतलब ये वाली इक्वेशन यूज होगी 8N - 3M, दैट इज 8 इंटू 0 -3 इंटू 2, दैट इज कम्स आउट टू बी -6. Now next solving is here again supply is greater than demand, तो simply हम यहाँ पे इसको पुट करेंगे 8 इंटू 1 that is 8 -3 इंटू 2 is 6, that 8 - 6 is 2. So we are going to solve this equation as such. Now here is 2 and 2 means simply 5 into 2 is 10. Now here again demand is greater than supply, that is we are going to put 5 into 2 is 10 and there will be 10 and here will be 10 so on. We have calculated the P of tables.
पुटिंग अप दी यूजिंग दिस प्रॉफिट इक्वेशंस विच वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड. अब उसके बाद हम एक्सपेक्टेड गेन्स निकालेंगे और यू कैन से एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, एंड फाइनली हम वो डिसीजन ऑप्ट करेंगे जिसमें हमारे पास सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू मिल रही होगी. फॉर दिस वी आर गोइंग टू डू इज, हमारे को पता है हमें इनिशियली क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ यूनिट्स डिमांडेड के साथ हमें प्रोबेबिलिटीज गिवन थी, उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज गिवन थी. आई एम जस्ट राइटिंग दी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज हियर विद सप्लाई सो दैट कैलकुलेशन बिकम्स इजी. अब यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटीज थी गुड्स डिमांडेड के साथ 0.2, 0.2, 0.25, 0.30, 0.05. ठीक है, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटीज गिवन थी क्वेश्चन में. सो अब सिंपली हमने क्या करना है, हम यहाँ पे हमने जो ये पे ऑफ निकालने हैं, ठीक है, जैसे 0 पे यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 इंटू 0.02, 0.2 सॉरी, प्लस अगेन 0 इंटू 0.2 प्लस 0 इंटू 0.25 प्लस 0 इंटू 0.30 प्लस 0 into 0.05. Again, summing up, it will come out to be 0 because everything is being multiplied with 0. Now, considering the next equations, हम next equation में क्या करेंगे, हम ये वाले pay offs हमने calculate किए, -3, then 5, 5, 5, and 5. So how many 5s were there? There were 5 5s, 1, 2, 3, 4 and 5, one more. Right? उसके साथ हम क्या करेंगे, हम इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज के साथ इनको मल्टीप्लाई करेंगे. सो फॉर दिस -3 इंटू 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.25 प्लस, एंड वी आर जस्ट एडिंग अप. ठीक है, हम इनको पे ऑफ के साथ मल्टीप्लाई करके हम इनको क्या कर रहे हैं, हम इनको एड अप कर रहे हैं. 0.30. Simply what we are doing is we are putting up we are taking up these payoffs corresponding to the probabilities which were given to in the question, that is 0.2 and then 0.2 and 0.25, 0.30 and 0.05, 0 So these are the probabilities. हम सिंपली इसको मल्टीप्लाई करके एक्सपेक्टेड पे ऑफ्स निकाल लेंगे. लाइक फॉर द सेकंड, अब सेकंड में हमारे पास पे ऑफ्स हैं ये -6, 2, 10, 10, 10, 10 एंड ये हमारे पास प्रोबेबिलिटीज हैं. सिंपली विल मल्टीप्लाई दिस एंड एड अप. So simply by multiplying the payoffs with the respective probabilities and adding up, we'll get expected gains, or you can say expected monetary value. And on analyzing this, so we are finding it that 5.2 is the highest gain, or you can say highest expected gain, which is when 2 units are being produced. That is, 2 units are being supplied or produced. So the decision should be that 2 units should be produced. So thus 2 units should be produced. बिकॉज वहां पे हमें एक्सपेक्टेड जो गेन हो रहा है वो सबसे मैक्सिमम है, दैट इज ₹5.2. फाइन. आफ्टर दैट हम एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे, दैट इज एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस. द नेक्स्ट इज, हमने अभी तक किया एक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन, एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू. अब हम इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस, और इज ऑल्सो नॉन एज रिग्रेट. ठीक है, अपॉर्चुनिटी लॉस इज रिग्रेट. हम जैसे वहां पे पे ऑफ टेबल बनाते थे, हम यहाँ पे रिग्रेट टेबल बनाएंगे. बट हाउ वी कैलकुलेट दी अपॉर्चुनिटी लॉसेस, हम सबसे पहले जो हमें, बिकॉज अपॉर्चुनिटी क्या होती है, दैट इज विच इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव. तो हम डिफरेंस निकालते हैं, हाईएस्ट पॉसिबल प्रॉफिट. ठीक है, और जो एक पर्टिकुलर स्टेट ऑफ नेचर का होता है, जो हाईएस्ट पॉसिबल प्रॉफिट, और जो हमें एक्चुअल प्रॉफिट हो रहा होता है, उन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं. ठीक है, सो अपॉर्चुनिटी लॉस इज कैलकुलेटेड बाय दी हाईएस्ट पॉसिबल प्रॉफिट, जो भी पर्टिकुलर स्टेट ऑफ नेचर की बात कर रहे हैं, और एक्चुअल प्रॉफिट. ये कैसे एक्सरसाइज होते हैं, विल एक्सरसाइज इन द क्वेश्चन. सो अब इस क्वेश्चन में जैसे हमने एक्सपेक्टेड गेन किया, तो हम वो वाला डिसीजन लेते हैं जिसमें हमें सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड गेन की पॉसिबिलिटी होगी. बट अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस की, सो हम उसमें वो वाला डिसीजन ऑप्ट करते हैं जिसमें हमें सबसे कम अपॉर्चुनिटी लॉस हो रहा होगा, हम वो वाले को ऑप्ट करेंगे. सो लेट अस एक्सरसाइज विद वन क्वेश्चन, एंड दिस इज द प्रॉब्लम हियर विद अस, एंड दिस इज इफ द फॉलोइंग पॉइंट्स पे ऑफ्स, अगर हम सबकी पे ऑफ कंसिडर करें, सो दैट कम्स आउट टू बी 0.3, 0.3, 0.2, 0.2. ये हमारे पास प्रोबेबिलिटीज गिवन है. ठीक है, रिस्पेक्टेड प्रोबेबिलिटीज आर गिवन टू अस, एंड मोर ओवर द नेक्स्ट इज of the S1, S2, S3, S4 respectively. We have to find out regrettable and expected opportunity loss of the acts. So हम इसमें expected opportunity loss को कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, of the following payoffs given to us.
Part is the question says we have to draw a regret table. ठीक है, regret is opportunity loss only. और हम opportunity loss कैसे निकालते हैं? अब ये एक state of nature है, ठीक है, S1, उसमें हमें highest profit हो रहा है. तो यहाँ पे हमें जैसे फर्स्ट स्टेट ऑफ नेचर है S1. अब S1 में हमें सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट कौन सा हो रहा है? 16. सो हम ये हाईएस्ट प्रॉफिट को सबके एक्चुअल प्रॉफिट्स में से डिडक्ट कर देंगे एंड दैट इज नोन एज अपॉर्चुनिटी लॉस. जैसे यहाँ पे 16 है, 16 माइनस 16 0, 16 माइनस 12 4, 16 माइनस 10 इज 6. अब S2 में हमारे पास सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है 13. सो हम सब में से 13 डिडक्ट करेंगे. 13 माइनस 10, 13 माइनस 11, 13 माइनस 13. सो वी फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट प्रॉफिट of a particular state of nature and the actual profits, that is called opportunity loss. अब S3 में हमारे पास 14 है, S4 में it's rupees is 12. ठीक है, corresponding we'll find out the regret tables. उसके बाद हमें expected opportunity loss निकालनी है. उसके लिए हम opportunity loss निकाल चुके हैं and these are the probabilities which were given to us. हम simply क्या करेंगे, ये जो opportunity loss निकाली है इनके corresponding probabilities के साथ इनको multiply करेंगे and we'll add up. ठीक है, एंड वी फाइंड आउट. अब फाइंडिंग ऑन दिस इज सबसे फर्स्ट है, पहले हमारे पास क्या है यहाँ पे 0 अपॉर्चुनिटी लॉस इंटू 0.3 प्लस 3 इंटू 0.3 प्लस 2 इंटू 0.2 प्लस 5 इंटू 0.2. फाइन कैलकुलेटिंग दिस इट कम्स आउट टू बी 2.3, 3.4, 1.8. अब सबसे मिनिमम कौन सा आ रहा है? 1.8. अपॉर्चुनिटी लॉस हम वो सिलेक्ट करते हैं जो मिनिमम हो, तो जहां पे एस AOL इज मिनिमम और वो कहाँ पे है? दैट इज इन A3. A3 में मिनिमम है तो हम A3 को चूज करेंगे. सो एट 3 वुड बी चूजन हियर. Going to learn about expected value of perfect information. ठीक है, and this is basically it's used when we are using the expected runs in long run. हम long run में जब use कर रहे होते हैं, so we use this term expected value of perfect information that is denoted by EVPI. अब EVPI को निकालने का फॉर्मूला है इस EPPI माइनस मैक्सिमम EMV. EMV जो हमने पीछे भी कैलकुलेट किया दैट इज एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू जो मैक्सिमम आ रही होगी. एंड देन EPPI को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है वी टेक अप द पे ऑफ्स, द मैक्सिमम पे ऑफ्स इन फर्स्ट स्टेट and into the probability and same way maximum payoff of second state into the probability. हम इसके basis पे भी एक illustration practice करेंगे. Now this is the problem here which says we have been given the payoffs are given to us and the probabilities are also given to us. We have to calculate EMV and also EVPI. अब EMV को कैलकुलेट करने का तो सेम वे पैटर्न है जो हमने पीछे अभी देखा. जैसे EMV अगर हम फर्स्ट देखें, वी कैलकुलेट फॉर द फर्स्ट एक्ट. EMVs हम निकालेंगे. EMVs को निकालने का सेम वे है बट प्लीज एक बात ध्यान रखना, EMVs हम हमेशा एक्ट्स की निकालते हैं और यहाँ पे ना एक्ट्स हमें वर्टिकली गिवन है जैसे A B C, तो हम इनके निकालते हैं हमेशा एक्ट्स के. और जो प्रोबेबिलिटीज होती हैं वो स्टेट ऑफ नेचर की होती हैं, मीन्स S की. अब जैसे यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज कितनी है, अगर मैं इसको इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लिख रही हूँ यहाँ पे 0.3, 0.4 और 0.3. ठीक है, ये हमारे पास इसकी एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटीज है. हम सिंपली हमने क्या करना है, हम यहाँ पे जैसे A की निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A की इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, -20 इंटू 0.3 प्लस 200 इंटू 0.4 प्लस 400 इंटू 0.3. तो एक बात ध्यान रखना, हम हमेशा एक्सपेक्टेड जो निकालते हैं वो एक्ट्स की निकालते हैं विद कॉरेस्पॉन्डिंग उनकी प्रोबेबिलिटीज देखते हैं स्टेट ऑफ नेचर के हिसाब से. सो कैलकुलेटिंग दिस विल कम आउट टू बी 194. सेम वे अब नेक्स्ट की क्या हो जाएगी, -50 इंटू 0.3 प्लस 200 प्लस 100 इंटू 0.4 अब यहाँ पे हमारे पास सबसे एक्सपेक्टेड जो मैक्सिमम EMV किसकी आ रही है, दैट इज फॉर दी एक्ट ए एक्ट की आ रही है. सो दी EMV ऑफ एक्ट A इज मैक्सिमम. यहाँ पे किसकी मैक्सिमम है, एक्ट A की. करेक्ट, सो इट शुड बी सिलेक्टेड एज पर दी EMV. बट हमने इस क्वेश्चन में हमने EVPI एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन भी कैलकुलेट करनी है. So we'll calculate this. This was our first part of the question. Now I'm going for the second one.
इन पार्ट दैट इज कैलकुलेशन ऑफ ईवीपीआई, हम उसके लिए सबसे पहले हम ईपीपीआई की कैलकुलेशन करेंगे। ईपीपीआई में से हम मैक्सिमम ईएमवी को डिडक्ट कर देते हैं तो हमारे पास ईवीपीआई आ जाती है। उसके लिए हमने ईपीपीआई के लिए भी फॉर्मूला देखा था, उसमें हमें पहले क्या चाहिए, मैक्सिमम स्टेट ऑफ नेचर। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जैसे ये स्टेट ऑफ नेचर हमें गिवन है, अब जैसे यहाँ पे देखो मैक्सिमम स्टेट ऑफ नेचर कितनी आ रही है, यहाँ पे 200, और नेक्स्ट में मैक्सिमम स्टेट ऑफ नेचर कितनी आ रही है, दैट इज अगेन 200 हेयर, और यहाँ पे 600। हम इनको इनकी प्रोबेबिलिटीज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे 200 इंटू 0.3, दिस विल कम आउट टू बी 60। नेक्स्ट देखिए, अगर 200 इंटू 0.4 दैट इज 80, एंड नेक्स्ट इज 600 इंटू 0.3, हमने सिंपली इसको मल्टीप्लाई किया एंड दिस कम्स आउट टू 180। समिंग अप दिस कम्स आउट टू बी 320, 180 प्लस 40, सॉरी 180 प्लस 80 प्लस 60, दिस कम्स आउट टू बी 320। ये हमारे पास क्या आया, ईपीपीआई, बट हमने एक्चुअली में क्या निकालना है, ईवीपीआई। उसका फॉर्मूला होता है ईपीपीआई माइनस मैक्सिमम ईएमवी, राइट। सो हम यहाँ पे 320 माइनस मैक्सिमम ईएमवी जो हमने पहले कैलकुलेट की थी दैट वाज 194, सो 320 माइनस 190, दिस विल कम आउट टू बी ₹126। सो हमने इसमें मैक्सिमम ईवीपीआई, जिसमें हम देखते हैं कि लॉन्ग रन में हमारे पास एवरेज रन कितना होगा, सो दैट इज 126 वी हैव कैलकुलेटेड। सो दिस वाज फॉर ईवीपीआई।